Namaskar, I'm Ashok Vyas. Today, as we meet, and we will have two esteemed panelists joining us. If we are paying attention to what is happening in the world, we are concerned. We are concerned about the potential escalation of volatility in the world, and with the new power demonstrated by Ukraine with its Operation Spider Web, the way Russia has been at the receiving end with the loss of billions of dollars as well as weaponry, uh, it brings us to look at the world in a different way, where we are, how Russia is going to react, etc. So, talking about the new emerging world order, I have the pleasure of welcoming Prem Tanmayji from Bangalore, and from Washington DC based our India journalist friend Lalit K. Jhaji. तो आप दोनों का स्वागत है. And as always, we will switch in Hindi and English both. But I'll begin with you, Lalit ji. Do you see this further escalating and sort of pushing away from the track of possible peace talks which are being planned between Russia and Ukraine? And what kind of impact do you see this successful spider web operation by Ukraine on Russia is going to lead us to? Definitely, at a time when there was serious peace talks were being going on between Ukraine and Russia with the help of United States of America and several European countries, this kind of deadly attack being carried by Ukraine is uh, is provocative and not in good faith. It, I believe, the way Russians or President Putin has been, it will result in very serious attack on Ukraine. So by doing this, Ukraine has killed any peace process that was being planned and scheduled. At a time, although they have shown their capabilities to hit deep inside Ukraine, there's no doubt about it. But if they were looking for bringing peace between the two countries, stop killing of innocent lives in Ukraine, that is not going to happen now. We will see a brutal retaliation coming from. I expect. I not say. I'll expect brutal retaliation from Putin and Moscow into Ukraine in coming days. एब्सोल्युटली. सो दैट मीन्स प्रेम जी, जब हम ये देखते हैं कि इतना बड़े पैमाने पर अब तक जो हुआ नहीं ऐसा ड्रोन स्ट्राइक यूक्रेन करता है, रशिया को पंगु बना देता है, उनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को नष्ट कर देता है, $7 बिलियन से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया जाता है. तो ये सारा कुछ हुआ है इस्तांबुल में, जो संभावित शांति वार्ता होने वाली थी उसके ठीक पहले. तो प्रेम जी, इसके साथ साथ ये भी लगता है कि जो नए विश्व में जिस तरह से युद्ध हो रहे हैं उसमें ड्रोन बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका उनकी दिखाई दे रही है. जैसे कि ललित जी बता रहे थे, अब रशिया को कुछ न कुछ काउंटर अटैक करके अपने, जो भी कह दीजिए, स्थिति को मजबूत दिखाने का एक चुनौती उनके सामने है. क्या संभावनाएं आप देखते हैं आने वाले समय में, अमेरिका की भूमिका को भी इसमें जोड़ते हुए? अशोक जी, पहले तो आपने जिस विषय को चुना है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं. और दूसरी बात कि जो परिस्थितियां दुनिया की लगातार बदलती जा रही हैं, अगर मैं ये कहूँ कि ये टेक्नोलॉजी के रिवॉल्यूशन का पीरियड है. इसमें वेपन्स का तरीका बदल रहा है, लड़ने की सामग्री बदल रही है, युद्ध सामग्री बदल रही है, और दुनिया नई टेक्निक का यूज़ करना भी देखना चाहती है कि उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है. तो मुझे लगता है कि ये सब एक्सपेरिमेंट का पीरियड है. इसमें पूरा जो दुनिया है वो अपने छोटे मुल्क को किसी बड़े मुल्क से जो है उकसा करके, झगड़ा करा करके और उसका लाभ लेने की स्थितियों पर अगर मैं ये बात कहूँ तो भी गलत नहीं होगा. अमेरिका अगर रूस को
उकसा करके और यूक्रेन की मदद करके अगर झगड़े को बढ़ा देती है। अब आप बताइए, जब जब भी कहीं कहीं पर भी जैसे कहा जाता है कि शांति होगी, वहां पर शांति न होकर के अशांत वातावरण बन जाए, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार माना जा सकता है? अब आप देखिए कि यूक्रेन ने इतना छोटा सा मुल्क होते हुए रूस पर इतना बड़ा हमला किया। कुछ लोगों की तो मदद ली गई होगी, कुछ लोगों ने उसकी मदद भी की होगी, और इस तरीके से प्लानिंग की कि अपने अपने छोटे हथियारों की मदद से और कम खर्च में बड़ा नुकसान पहुंचा देना। और ये निश्चित बात है कि शांति वार्ता के एक दिन पहले इस तरीके की घटना का होना, ये हमेशा सीज फायर या किसी युद्ध के बीच में रुकावट को उकसाने का काम करने वाली घटना होती है। तो मैं वापस आता हूँ आपके उसमें। ललित जी, अगर आप हिंदी में सह जाए तो हिंदी में जारी रखते हैं। हाँ जी। तो जिस तरह की संभावना का संकेत प्रेम जी ने किया, कोई भी सुनता है तो उसके दिमाग में ये आता है कि या तो नेटो राष्ट्रों की तरफ से या अमेरिका की तरफ से कुछ अतिरिक्त मदद मिली हो, लेकिन इसका पब्लिकली या कोई भी स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि किसी दूसरे राष्ट्र ने मदद की हो। पर अनुमान तो जैसे प्रेम जी ने लगाया, ऐसे कई विश्लेषक लगा सकते हैं। आप इस बारे में कैसे देखते हैं, इस बात को याद रखते हुए कि कुछ 2-4 दिन पहले ही राष्ट्रपति अमेरिका के ट्रंप पुतिन के प्रति अपनी नाराजगी को खुलकर व्यक्त कर चुके हैं, और पुतिन जहां पर शांति वार्ता के लिए आने वाले थे, जब ये मिडिल ईस्ट के दौरे पे थे, तो वहां आए नहीं थे। तो इसको देखते हुए अमेरिका रशिया के संबंध और विश्व शांति की जो हम एक संभावना या सपना लेकर चलते हैं, आने वाले समय को आप कैसे देखते हैं ललित जी? पहले तो ये कि जो अटैक हुआ है, यूक्रेन ने डेफिनेटली अपनी कैपेबिलिटीज का विश्व के सामने प्रदर्शन किया है, बट उसमें ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का मुझे नहीं लगता कहीं हाँ होगी या फिर कोई रोल होगा। अगर उनको पता होता तो इस चीज को जरूर रोकने की कोशिश करते कि ट्रम्प राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने अपनी पूरी पॉलिटिकल कैपिटल इसी पे लगाई है कि यूक्रेन और रशिया की युद्ध को बंद किया जाए। और ट्रम्प तो ज्यादा बोलते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, तो उनकी नाराजगी थी तो उन्होंने स्पष्ट किया। बट आई एम नॉट श्योर 100% श्योर कि इसमें ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने को पता भी नहीं होगा कि ऐसी चीजें यूक्रेन प्लान कर रहा है। यूक्रेन ने ऐसा करके जरूर अपनी जो दुश्मनी है और अपनी जो यूक्रेन रशिया के साथ जो दुश्मनी है उसको जग जाहिर किया है। बट उनका अगर कोई मकसद था कि यूक्रेन की लोगों की जान बचाई जाए, उनकी जो हत्याएं हो रही हैं रशिया के द्वारा उसको कम किया जाए, तो इससे तो कहीं कोई फायदा नहीं होने वाला है। इससे और भी लोगों की जान माल की नुकसान होगा, क्षति होगी, इसकी संभावना है। जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने शांति की पुश कर रहे, शांति की वार्ता कर रहे हैं, नाटो और अदर यूरोपियन कंट्रीज में मेजॉरिटी ऑफ देम उनके साथ है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि पिछले 6 महीने से पहले जो यूएस ने, यूरोपियन कंट्रीज ने, नाटो ने जो यूक्रेन को हेल्प किया, मदद की है, उसमें हर किसी को पता है यूएस से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इक्विपमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल एड यूक्रेन में गई हैं। इसके कुछ नॉन सिविलियंस भी किसी न किसी रूप में वहां पर हैं जो यूक्रेन को मदद कर रहे हैं उस युद्ध को, रशिया के खिलाफ इस युद्ध को जारी करने के लिए। तो यूएस की तो मदद है ही, बट जनवरी 20 के बाद आई डोंट थिंक सो इसके लिए उन्होंने, ट्रम्प ने, उनके एडमिनिस्ट्रेशन किसी ने भी इसकी सहमति दी होगी, या मुझे लगता है कि उनको भी ब्लाइंड साइटेड की गई है इस ऑपरेशन में। तो अभी जैसे कि स्वाभाविक है, पुतिन एक ऐसी स्थिति में है जिसको आप अनएनविएबल पोजीशन कह सकते हैं, और अपने आप को और रशिया को स्थापित करने के लिए उन्हें कुछ ठोस काउंटर मेजर्स डेमोन्स्ट्रेट करने ही होंगे, ऐसा अनुमान हम लगा सकते हैं। पर इसके साथ साथ जो बात आपने पहले जिसका उल्लेख किया, और उसमें फिर हम भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हुआ, उसमें भी ऐसा लगता है आधुनिक समय में जो युद्ध जिस तरह से हो रहे हैं या होने वाले हैं, उसमें अभी कंप्यूटर
जनरेटेड जो डिवाइसेस हैं उनका उपयोग, आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़े पैमाने पर काम करने वाली है, प्रिसिशन अटैक वगैरह के हिसाब से। तो एक तरफ हम शांति की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जिस तरह का विकास हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेते हुए, वो क्या हम सबको और अधिक खतरनाक स्थिति के समीप ले जाता दिख रहा है प्रेम जी आपको? और इसमें मुझे ये भी बात जोड़ना चाहिए कि आप इसमें जो पॉसिबल ब्राइट लेयर जिसे हम कहते हैं, या जहां हम आशा की किरण को देख सकते हो, ऐसा आपको क्या दिखता है प्रेम जी? अशोक जी, देखिए कि टेक्नोलॉजी को यूज करने की जो यूज करना आना चाहिए। सब चीजें अच्छी है, लेकिन आप अगर दुश्मनी के लिए उसे काम में लेते हैं और अपनी क्षति कम करते हुए दूसरे का भारी नुकसान कर देते हैं। अब आप देखिए, अगर यूक्रेन को ये समझना चाहिए कि रूस से युद्ध वो कितने समय तक लड़ सकता है। ये अपनी शक्ति का परीक्षण करे, दूसरों के उकसाने पर या दूसरों के हथियारों से कब तक लड़ा जा सकता है। अगर अगर रूस अपनी पर आ जाए, जैसा कि हम सब चिंता कर रहे हैं, जैसा आप भी चिंता कर रहे हैं कि लोग मारे जाएंगे और नहीं मारे जाने चाहिए, लेकिन तो क्या यूक्रेन की हरकत सही है? तो अगर रूस, जैसा आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि रूस इसका जरूर जो है वो बदला लेगा, और रूस क्या बदला ले सकता है? यूक्रेन इतना सा है, सब जगह पॉपुलेशन है, उसके पास में क्या है जहां पर जाकर के वो अटैक करे और दुनिया को दिखाए कि मैंने यूक्रेन का नुकसान किया? तो क्या नुकसान पहुंचा सकता है, आप सोचिए। यहाँ पर यही स्थिति है कि अगर दुनिया को ठीक ढंग से समझना है, तो जैसे अब ट्रंप साहब कहते हैं कि मैं सबसे पहले युद्ध बंद करवाऊंगा, और उनके आने के बाद में युद्ध की परिस्थितियां पूरे दुनिया में बनती हुई दिखाई दे रही है। बड़ा विपरीत सा लगता है ये सब। इधर आप देखिए, चाइना भारत के चारों तरफ के लोगों को उकसा करके युद्ध के लिए प्रेरित करता है और हथियार सप्लाई करता है, और भारत चूंकि बढ़ती हुई इकोनॉमी हो रहा है और उसको इधर उलझा करके, और चाइना उसकी फायदा लेना चाहता है। अब युद्ध इस तरीके से लड़े जा रहे हैं कि दो छोटे, मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि अमेरिका पहले युद्ध में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाता था, अब वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट में फेल्योर देखा है उन्होंने। तो अब वो क्या करते हैं कि इनडायरेक्ट, जैसा कि मैं पूरी तरह से झा साहब से सहमत होते हुए भी कि हो सकता है उनकी मंशा ये न हो कि युद्ध हो, और ये भी मंशा न हो, लेकिन जब आप किसी राष्ट्र अध्यक्ष को ये कहोगे कि ये पागल हो गया है, पगला गया है, तो उसका युद्ध के प्रति उकसाना ही हम तो मानते हैं, दुनिया जो देखती है वो उकसाना मान रही है। भारत के साथ में भी ऐसा ही हुआ। जब जब दो देशों की ये तय है कि हम बीच में नहीं पड़ेंगे, और वो बीच में कूद करके सबसे पहले बोले कि मैंने सीज फायर करवा दिया, तो आप बताइए, वो खुद परिस्थितियां ऐसी पैदा कर देते हैं कि उसके बाद में लोग उन्हें डिनाई करें कि नहीं नहीं आपने नहीं कराया है। क्रेडिट लेने की जहां तक दुनिया के अंदर अगर होड़ मचेगी, तो फिर इसमें मुझे लगता नहीं है कि ये मन से किया गया काम है युद्ध को रोकने के लिए। तो मन तक पहुंचने के बारे में हम अनुमान ही का पुल बनाते हैं ललित जी, ठीक से मालूम शायद प्रमाण हमेशा समय पर प्रकट नहीं होते, बाद में मुड़कर होता है कि ये डोजियर थे, वो अभी डिस्क्लोज हो गए, तो कुछ बातें पता लगने लगती हैं। पर हम थोड़ा सा इस बारे में ये देखें कि जिस स्थिति में रशिया और यूक्रेन है, अगर यूक्रेन इस तरह की कैपेबिलिटी को डेवलप करता है, चाहे इंडिजीनियसली या नेटो राष्ट्रों की सहयोग से या अमेरिका के सहयोग से, संभावना को देखते हुए हम बात करें, तो ये जैसे प्रेम जी कह रहे थे कि ऐसा करना कहां तक ठीक है, तो प्रश्न ये आता है, जब युद्ध हो रहा है तो जिस तरह से भी आप नुकसान पहुंचाओगे, आप उसको ठीक समझोगे, आप उसको क्यों गलत समझोगे? अगर उन्होंने 41 फाइटर एयरक्राफ्ट रशिया के नष्ट कर दिए, तो ये उनके लिए निश्चय ही एक विजय के पड़ाव के जैसी स्थिति आएगी। तो हम यूक्रेन को इसमें इस आधार पर एक एथिकल स्टेप के दृष्टि से प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं कि वो इस्तानबुल में शांति वार्ता होने के पहले आपने ऐसे किया, पर उसके अलावा तो
ऐसा करना सहज होगा, जिसके पास जितनी सामर्थ्य होगी वो उतना नुकसान पहुंचाएगा। युद्ध हो रहा है। ललित जी, आप कैसे देखते हैं इसको? या इसमें ये है कि अगर आप युद्ध करना चाहते हैं तो पूरे मन से युद्ध करें, राइट। कोई गलत बात नहीं है कि अभी यूक्रेन की तरफ से, यूक्रेन के साइड की तरफ से देखें तो उन्होंने एक्शंस ली हैं, युद्ध में, पूरे युद्ध में गए हैं, तो लेट लेट देम डू इट। बट अगर शांति की वार्ता कर रहे हैं, राइट, और अपने लोगों की जो हानि है, जनमान की हानि है, उसको बंद करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में ये कदापि एक सौहार्दपूर्ण कदम नहीं है। ये कदम युद्ध की ओर लेके जाता है, शांति की ओर लेके नहीं जाता है। मेरा यही कहना है कि अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति चाहते हैं कि उनकी लोगों की जान मान कम हो, नुकसान कम पहुंचे, किलिंग्स कम हो, तो सर्टेनली दिस वाज नॉट द स्टेप टू डू इट। अगर प्लानिंग 1 साल से चल भी रही थी तो उसको रोका जा सकता था, उसको बंद किया जा सकता था। ये तो सिर्फ यही अपने एक बड़ी शक्ति की पावर को, जिसके पास और भी कैपेबिलिटीज हैं, उनको आपने न्योता दिया है, खुलेआम न्योता दिया है कि आप बैल मुझे मार, राइट। आप देखिए क्या होता है। आई होप देयर इज सम मैच्योरिटी विद इन द मॉस्को आल्सो कि इसको यहीं पे खत्म करें और आगे ना बढ़े, शांति की तरफ लेके जाएं। बट अगर यूक्रेन की नेशनल पर्सपेक्टिव से देखेंगे, नेशनल इंटरेस्ट में देखेंगे, तो कदापि ये एक महत्वपूर्ण कदम नहीं है, ये एक उल्टी दिशा में कदम ली गई है। बिल्कुल सही। आप दोनों की बात को प्रोसेस करते हुए मैं भारत और पाकिस्तान की तरफ यदि चलता हूं, तो सिर्फ ये एक स्थिति ऐसी बनी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 3-4 दिन में ही वो पूरा सिमट सा गया। और उसमें जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका की तरफ से उन्होंने ट्वीट करके वो सीज फायर की घोषणा की थी, उसको लेके काफी भारत में लोग असंतोष उन्होंने व्यक्त किया था। और बाद में अब विदेश मंत्री महोदय की तरफ से और भारत की तरफ से धीरे धीरे करके, यानी खुलकर तो ऐसे नहीं कहा कि इन्होंने ऐसे नहीं किया था, लेकिन धीरे धीरे करके स्पष्ट कर दिया कि नहीं, ये तो आपसी समझौते के अंतःपाती हुआ था। तो प्रेम जी, ये जो स्थिति है, इसके बाद के जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी चिंता में कहीं ना कहीं लोगों को डालने वाले हैं। ऐसा लगता है कि जब आतंकवादी हमला पहलगाम में भारत में निर्दोष लोगों पर हुआ, तब तो अमेरिका भारत की तरफ से बोलता लग रहा था, सहानुभूति भी व्यक्त कर रहे थे और भारत को इसके बारे में जो करना चाहिए वो करना चाहिए, इस प्रकार का। लेकिन जब बाद में भारत ने ये कार्यवाही कर दी, उसके बीच में कुछ बदलाव हो गया ऐसा लगता है। वो मुझे कहीं ना कहीं इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ते हुए विश्व को दिखाता है कि पाकिस्तान की आलोचना जब ट्रंप पहले राष्ट्रपति थे जिस तरह से वो करते करते रहे थे, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि काफी सारे कदम भारत के विपरीत और पाकिस्तान के समर्थन में अमेरिका के दिखाई दे रहे हैं। पहले भारत में बैठे हुए प्रेम जी क्या सोचते हैं, फिर मैं ललित जी के पास आता हूं। बिल्कुल, भारतीय जो सोच रहा है वो यही सोच रहा है कि जितना खुल करके ट्रंप पहले भारत के पक्ष में अपनी बात करते हुए नजर आते थे, वो उसके विपरीत जाते हुए दिखाई देते हैं। पहले वो पाकिस्तान को ये मानते थे कि ये आतंकवाद को पालने वाला देश है। अब उतना जब वो आतंकवादी कार्रवाई करता है तो उतना खुल के दिखाई नहीं देते जितना वो कह रहे थे। अब आप देखिए, पाकिस्तान की आज की परिस्थितियों में देखें तो जितने आतंकवादी है मुखर होकर के सड़क पर आ गए हैं। आज वो भाषण कर रहे हैं खड़े होकर के, और सेना के चित्र साथ में लगाए हैं और सेना के प्रतिनिधि उनके साथ में खड़े हैं, सरकार के भी खड़े हैं। अब ऐसी परिस्थिति में अगर विश्व आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होता है तो मुझे तो दिखता नहीं कि ये खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में डायरेक्ट उनका कोई ऐसा स्टेटमेंट आना चाहिए जिसमें ये पता लगे कि मुनीर को फील्ड मार्शल बना करके, और इधर फिर इकोनॉमिकल हेल्प भी उनको लोन के माध्यम से दी जा रही है बराबर, इसमें भी कोई रुकावट खड़ी नहीं की। एक तरफ अगर वो युद्ध के पक्ष में नहीं है तो उनको उनकी आर्थिक मदद रोकनी चाहिए, उन्हें पता है कि वो किस जगह इस्तेमाल करेंगे उस लोन का। तो परिस्थितियां ऐसी ही बन रही हैं कि दिखता नहीं है कि जैसा उनका रोल पहले हुआ करता था वैसा दिखता नहीं है। और मैं तो दुनिया को भी ये देख रहा हूं कि आतंकवाद से जब खुद पर पड़ती है, जब ट्विन टावर पर झगड़ा जब जब पड़ा, तो आकर के उन्होंने कहा कि आतंकवाद बहुत खराब होता है और उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए, और बड़ा एक्शन भी हुआ। पाकिस्तान के अंदर घुस करके उन्होंने बिन लादेन को मारा।
और यहाँ पर जब भारत ऐसी परिस्थितियों में खड़ा हो रहा है तो उसको खुल के समर्थन देना चाहिए, वहां पर वो बैक होते हुए दिखाई देते। ललित जी, मैं दूसरी तरफ से इसी बात पे आता हूँ। मैं भारत में अपने एक पत्रकार मित्र से बात कर रहा था, वो इस तरह का विश्लेषण कर रहे थे कि ये भारत की विदेश नीति की हार है कि भारत के साथ खुलकर कोई और राष्ट्र उस समय खड़ा नहीं हुआ जब भारत और पाकिस्तान के बीच में ये स्थिति उत्पन्न हो गई। पर बात वहां से करते हैं, एक क्रिप्टो करेंसी एग्रीमेंट अमेरिका और पाकिस्तान के मध्य का, दूसरा अभी मिनरल संबंधी कोई समझौता पाकिस्तान और अमेरिका के मध्य में हुआ है और कुछ $40 बिलियन संभवतः वर्ल्ड बैंक या देने वाले IMF का लोन तो गया है। इसको हम अगर ऐसा देखें कि कहीं ना कहीं एक ऐसा विचार कार्य कर रहा है कि पाकिस्तान को सशक्त रखना है, जिससे कि वहां का जो रीजनल बैलेंस है वो ऐसा रहे कि भारत पूरी तरह सुपरसीड नहीं कर रहा है। ये ऐसा अगर सोचा जाता है तो आप इसको किस तरह देखते हैं? ये एक सहज आर्थिक दृष्टि से लिए गए अमेरिका के कदम है, क्योंकि यूक्रेन में भी वो मिनरल से संबंधित कुछ समझौता कर रहे थे, बलूचिस्तान में सोना भी होने का है, और तो उसको किस तरह से निकाला जाएगा, वो सारा टेक्निकल जो नो हाउ है वो अमेरिका लेके जाएगा और वहां पे संसाधन है। तो ये सब कुछ आ रहा है, जो हम आतंकवाद के परिदृश्य को लेकर पाकिस्तान को जिस नजर से देखते हैं, ये उससे एकदम अलग बात है। आप कैसे देखते हैं इस परिवर्तन को, ये इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के कंटेक्स्ट में, ललित जी? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो पाश्चात्य कंट्री का और जो वेस्टर्न वर्ल्ड का जो व्यू पॉइंट रहा है, एक्शन रहा है भारत के प्रति, पिछले 75 सालों में मौलिक रूप से चेंज नहीं हुआ है। जब आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान सपोर्टेड कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पे अटैक किया और हम जीत रहे थे, उनको 2 दिन चाहिए थे हमारी फौज को POK को वापस लेने में। तो हमारे जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने उस समय के हिसाब से सही निर्णय लिया अपने हिसाब से कि वो सिक्योरिटी काउंसिल में गए। उनको लगा कि ये सिक्योरिटी काउंसिल नई ऑर्गेनाइजेशन है और हमें जस्टिस देगा, लेकिन उनको बहुत धक्का लगा उसके बाद कि उन्होंने पाकिस्तान जो अटैकर था और जो भारत जो विक्टिम था उसको एक ही प्लेटफॉर्म पे रख दिया। और लास्ट के जो कुछ इंटरव्यूज हैं उसमें उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मैं काफी डिसअपॉइंटेड हूँ कि हम UN सिक्योरिटी काउंसिल में गए थे, हमें जस्टिस मिलेगा, बट सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या किया, अटैकर्स और विक्टिम्स को दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे दे दिया। एक गलत बात है, निर्णायक नहीं। और आज आप हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनकी कुछ स्पीचेस को सुनेंगे तो उसमें भी उन्होंने इसी बात को कहा है कि वर्ल्ड जो है सो अटैकर्स और विक्टिम्स को एक प्लेटफॉर्म पे डालने की कोशिश कर रहा है। हम नहीं मानते इस बात को, राइट? तो जो पाश्चात्य कंट्रीज का व्यू पॉइंट है 75 ईयर्स में ज्यादा मौलिक रूप से ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। ट्रम्प की बात करते हैं तो ट्रम्प हो या बाइडेन हो, ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अपने देश के हित के लॉन्ग टर्म व्यू में देखते हैं, राइट? हम उनसे एक्सपेक्ट करें कि जब हम मुसीबत में हो तो हमें साथ में जो है सो अपने राष्ट्र हित को साइड में करके हमें हेल्प करें। तो ये हम फिर उस गलतफहमी में रहेंगे, उस चीज को हमें उस गलतफहमी नहीं में रहना चाहिए। जो आत्मनिर्भर भारत की बात है, जो नॉन अलाइन मूवमेंट है और जो स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस है, इसकी पॉलिसी ने हमें रिजल्ट्स दी हैं और हम इसी पॉलिसी को भारत को आगे लेके चलना चाहिए। वेस्ट अगर हमें, और US हो या रशिया हो, जो भी कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज हो, अगर कुछ भी हमें मदद करता है तो वो हमारे लिए बोनस है। बट हम रिलाई करें 100% कि जब भी हमारे घर में आग लगेगी, कोई अटैक करेगा, कोई कूड़ा फेंकेगा हमारे घर के ऊपर, तो पड़ोसी आके या दूर के दूसरे गांव के लोग आके हमें हेल्प करेंगे, वो हम गलतफहमी के शिकार हो जाएंगे। हमें उन पे कभी डिपेंड होना ही नहीं चाहिए। तो जैसा डिपेंडेंट है भी नहीं, हमने कभी माना भी नहीं कि ट्रम्प हमारे बीच में है या हमें मदद कर रहा है या हमें मदद चाहिए। न किसी विदेश नीति के अंदर कोई बात सामने आई है ऐसी। राइट। तो हम इसी रास्ते पे सही जा रहे हैं, सही रास्ते पे जा रहे हैं। हमें उस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, डिपेंडेंट है भी नहीं। बट जो एक ग्रुप है, जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप है भारत में,
इस बात की हमेशा चर्चा करता रहता है। मैं उस संदर्भ में उसको कह रहा था। जहां तक पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान की जो कश्मीरी नीति है वो अंधभक्ति की नीति है। अगर आप पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव से देखें तो पाकिस्तान की कश्मीर नीति से पाकिस्तान को नुकसान ही हुआ है, पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ है। पाकिस्तान को पूरे विश्व के लोगों ने, विश्व के जो बड़े पावर्स ने, उन्होंने कश्मीर का झुंझुना उनको दिखाया है कि आओ मेरे साथ रहो, तो मैं कश्मीर का झुंझुना तुम्हें दे दूंगा, लेकिन कभी मिला नहीं उनको। इसका कारण इसका रिजल्ट क्या हुआ? 60s में जब पाकिस्तान वर्ल्ड, पूरे एशिया का एक इमर्जिंग इकोनॉमी माना जाता था, विश्व के कोने कोने से लोग आते थे, लोकल गवर्नेंस देखने के लिए आते थे 60s में, राइट। और आज क्या हालत हो गई, चाहे क्रिप्टो करेंसी की बात करें या IMF की बात करें, आज पाकिस्तान कश्मीर में इतना अंधा हो चुका है कि अपने देश को ही गिरवी कर दिया है। लिली जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, समय एकदम समाप्त होने की तरफ है। बहुत संक्षेप में आप दोनों के कमेंट्स में इस पे लेना चाहता हूँ, जो भारत से सभी राजनीतिक दलों का दल भारत की स्थिति को विश्व के कई देशों में स्पष्ट करने के लिए जो भ्रमण कर रहा है, जिसमें अमेरिका भी आए, शशि थरूर जी, अन्य लोग, उधर ओवैसी जी भी हैं, उसमें सलमान खुर्शीद जी भी हैं। तो आप बहुत संक्षिप्त में प्रेम जी बताइए कि उसको आप कितना सार्थक मानते हो, और अब तक जो आपने सुना पड़ा है उससे क्या लगता है? अशोक जी, अगर मैं सच में कहूं तो किसी भी विदेश नीति पर किसी के जाकर के कहने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। मुझे नहीं लगता है कि कोई अमेरिका पे फर्क पड़ेगा या कोई और दूसरों का। हाँ ठीक है, आपने अपना स्पष्टीकरण दे दिया कि भाई हमने इसलिए किया था, ये तो दुनिया देख रही है। चलिए, तो आपकी बात आ गई ललित जी, इसका क्या लॉजिक या फिलोसफी या जो थॉट प्रोसेस रहता है ना, इस तरह का सर्वदलीय दल जाते हैं अलग अलग में, आप इसको कितना सार्थक मानते हैं? लोग, डिप्लोमेसी में अवेयरनेस एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, नैरेटिव बिल्डिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो 35 देशों में, राष्ट्रों में जाके जो कारपेट बॉम्बिंग हुई है, नैरेटिव बिल्डिंग की, अपने व्यूज को बताने की, काफी हेल्पफुल रहेगी। जब जरूरत पड़ने पे जो दूसरे ये इम्पोर्टेंट जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, भारत की व्यूज को समझेंगे और उस हिसाब से, और तभी वो अपने राष्ट्र हित में निर्णय लेंगे, बट भारत की व्यूज को समझेंगे और इन्फॉर्म डिसीजन करने में उनको हेल्पफुल रहेगी। मैं उसको इस नजर से देखता हूँ। तो ललित जी और प्रेम जी का धन्यवाद करने के साथ साथ मैं एक जनरल बात ये सोचना चाह रहा हूँ आप दोनों के साथ, अपने दर्शकों के साथ में, कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो, ये आवश्यक नहीं होता है। और कई बार जो हो रहा है हम उसको नहीं देख के जैसा हम चाहते हैं वही देखते रहना चाहते हैं, और वो हमें एक प्रकार के इल्यूजन में ले जाता है। तो वहां से बाहर आने में अभी जिस तरह की स्थितियां हैं वो वॉलेटाइल सही, पर कहीं ना कहीं सत्य जबरन देखना पड़ेगा, तथ्य को साथ में मिलाते हुए ऐसी स्थितियां बन रही हैं। उसको मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं वो एक सकारात्मक रूप में ये इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक उपहार, अगर दृष्टि के स्तर पर देखें तो ऐसा हम इसको मान सकते हैं। ललित जी, आपका बहुत सारा धन्यवाद है, प्रेम जी आपका धन्यवाद है, और विश्व शांति की प्रार्थना आप दोनों के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद लोगों के साथ करते हुए विदा लेते हैं। नमस्कार।